ذرا تصور کریں دنیا کی سب سے اہم چیز یعنی آئل اب ڈالر میں نہیں کسی اور کرنسی میں خریدا اور بیچا جا رہا ہو. Now, the Iran war is triggering a new debate in global energy markets, the future of the dollar in oil trade. گزشتہ 50 سالوں سے آئل کی ٹریڈ پر ڈالر نے حکمرانی کی ہے. دنیا کے بیشتر ممالک آئل خریدنے کے لیے ڈالر استعمال کرتے ہیں, اپنے قومی ذخائر میں بھی ڈالر رکھتے ہیں اور عالمی لین دین کے لیے بھی ڈالر پر انحصار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اس نظام کے تحت اب نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی کچھ ایران کر رہا ہے. Iran has signaled that it would allow limited oil tankers to pass through the Strait of Hormuz if the cargo is traded in Chinese yuan instead of US dollars. ایران اپنی تیل کی فروخت میں آہستہ آہستہ ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان کا استعمال کر رہا ہے. خاص طور پر چین کے ساتھ ہونے والی تجارت میں. Industry estimates suggest oil trade settled in yuan is still in single digits percentage wise, but the trend is clear. It is growing. پہلی نظر میں یہ صرف کرنسی کی تبدیلی لگ سکتی ہے, مگر ماہرین کے مطابق اس کے اثرات عالمی معیشت, بین الاقوامی سیاست اور دنیا میں خاص طور پر امریکہ پر اس کے اثرات بہت گہرے پڑ سکتے ہیں. Moving on now, the petro yuan is gaining traction slowly but surely rising. The US dollar has dominated global oil trade for decades, but that dominance is being quietly challenged. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایران آخر کیوں یوان میں تیل فروخت کر رہا ہے. According to the latest reports, Tehran may permit some oil tankers to pass through the Strait of Hormuz, but only if the oil on board is traded in Chinese yuan instead of US dollars. یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ آخر اس سے چین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا واقعی ہی یہ قدم ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے, سب سے پہلے ہمیں پیٹرو ڈالر کو سمجھنا ہوگا. 1970 کی دہائی میں جب دنیا کو تیل کی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا, Gasoline shortages are spreading across the country. Gasoline lines and closed gas stations are becoming increasingly common. تو اس کے بعد زیادہ تر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے یہ اتفاق کیا کہ وہ اپنا تیل بنیادی طور پر ڈالر میں فروخت کریں گے. اس فیصلے نے ایک ایسے نظام کو جنم دیا جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہا جاتا ہے. اس نظام کا نتیجہ بہت سادہ تھا. دنیا کے ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑنے لگی. مختلف ممالک کے بینک ڈالرز کو اپنے ریزرو میں رکھنے لگے اور بین الاقوامی تجارت کا زیادہ تر انحصار ڈالر کے نظام پر ہو گیا. اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ڈالر کی مانگ مسلسل بڑھنے لگی اور امریکہ کا معاشی اثر و رسوخ کئی دہائیوں تک مزید مضبوط ہوتا چلا گیا. آج بھی دنیا میں ہونے والی زیادہ تر تیل کی تجارت امریکی ڈالر میں کی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیل نقل و حمل, فیکٹریوں, بجلی کی پیداوار اور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے. اس لیے جو ملک یا کرنسی تیل کی عالمی تجارت پر اثر انداز ہو وہ نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی طور پر بھی دنیا میں غیر معمولی طاقت حاصل کر لیتا ہے. ایران کئی برسوں سے امریکن سینکشنز کا سامنا کر رہا ہے. ان سینکشنز نے ایران کی معیشت پر گہرے اثرات ڈالے ہیں اور کئی اہم شعبوں کو محدود کر دیا ہے, جن میں شامل ہیں ایرانین بینکنگ ایسیٹس. The US Treasury Department imposed the sanctions on 18 major Iranian banks. This step could largely cut off Iran from the world's financial system just as it tries to cope with the COVID-19 pandemic. International money transfer. The US-Iran prisoner swap deal that was announced in August, in which Tehran will free detainees from its cells. The transfer of Iranian funds, totaling $6 billion, will be moved from South Korea to Qatar. Oil exports.
US Secretary of State Antony Blinken said Washington is temporarily waiving sanctions to allow certain financial institutions to engage with the national Iranian oil company. Foreign investment. Even as the U.S. was rolling out its sanctions announcement, Zarif was reacting on Twitter, thanking the Trump administration for considering him a threat to its agenda. जब तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर में होती है तो उसकी अदायगियाँ अमूमन ऐसे मालियाती निज़ाम के ज़रिए की जाती है जो किसी न किसी सूरत अमेरिका से मुंसलिक होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका उन ममालिक पर जिन पर पाबंदियाँ आयद हों काफ़ी हद तक दबाव डालने की सलाहियत रखता है। इसलिए ईरान को एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो डॉलर पर इन्हिसार किए बगैर अपना तेल फरोख्त कर सके। इस मसले का हल ईरान ने सबसे बड़े तेल खरीदार चाइना के साथ माशी तावन बढ़ाने में तलाश किया। ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में अदायगियां कबूल करना शुरू कर दी। Iran has signaled that it would allow limited oil tankers to pass through the Strait of Hormuz if the cargo is traded in Chinese yuan instead of US dollars. युआन में तिजारत करने से ईरान अमेरिकन सैंक्शंस के असरात को किसी हद तक कम कर सकता है और सैंक्शंस के बावजूद अपनी तेल की बरामद जारी रख सकता है। ईरान के लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है बल्कि ये इसकी माशी बका, खुद मुख्तारी और मालियाती आज़ादी की जंग भी है। ایران به تقویت روابط با جمهوری خلق چین به عنوان شریک جامع راهبردی فارغ از هر تحولی در شرایط بین المللی و اجرای برنامه جامع همکاری 25 ساله بین دو کشور توجه و اهتمام جدی داره. अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन इस पूरे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल दरामद करने वाला मुल्क है। China's state-owned refiners are evaluating fresh import deals for Iranian oil after a limited sanctions waiver from the United States. Now remember, this move comes at a time when global energy markets are tight and could potentially reshape oil trade flows across Asia. हर साल चाइना दुनिया भर से तेल और दीगर तवानाई के वसाइल खरीदने पर खरबों डॉलर खर्च करता है। पिछले कई दहाइयों से इनमें से ज्यादातर खरीदो फरोख्त डॉलर में होती रही है, लेकिन चाइना की क़यादत काफी अरसे से ये चाहती है कि चाइनीज करेंसी युआन भी आलमी तिजारत में डॉलर की तरह अहम किरदार अदा करे, क्योंकि जितने ज्यादा ममालिक युआन में तिजारत करेंगे इतना ही चाइना का असर रसूख आलमी मालियाती निज़ाम में बढ़ता जाएगा। ईरान चाइना के लिए इस मंसूबे को आजमाने का एक बेहतरीन मौका साबित हुआ, क्योंकि ईरान पहले ही अमेरिकन सैंक्शंस का सामना कर रहा है। ईरान अपनी तेल की फरोख्त के लिए बड़ी हद तक चाइनीज खरीदारों पर इन्हिसार करता है और चाइना के पास ऐसे मालियाती मुतबादिल अदायगी के निज़ाम मौजूद हैं जो अमेरिकन मालियाती निज़ाम पर कम इन्हिसार करते हैं। इसी वजह से ईरान और चीन ने ऐसे तिजारती इंतजामात कायम किए जिनके तहत तेल की अदायगियाँ आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में की जा रही है। चाइना के लिए युआन में होने वाली हर बड़ी तेल की खरीदो फरोख्त सिर्फ एक कारोबारी मुआहदा नहीं है, बल्कि अपनी करेंसी को आलमी सतह पर मजबूत बनाने और इसे बैनुल-अक़वामी शमूलियत दिलाने की जानिब एक अहम कदम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि युआन में तेल फरोख्त करने का सिर्फ एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदल देना है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आमतौर पर ये अमल कुछ इस तरह होता है। ईरान अपना खाम तेल चाइना की कंपनियों को बरामद करता है। चाइनीज कंपनियां इस तेल की कीमत डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में अदा करती हैं। ये अदायगियां चाइनीज बैंकों और चाइना के अपने मालियाती और अदायगी के निज़ाम के ज़रिए मुकम्मल की जाती हैं। इसके बाद ईरान इसी युआन से चाइना से मशीनरी, सनती सामान, टेक्नोलॉजी या दीगर अशिया और खिदमात खरीद लेता है। इस पूरे अमल में डॉलर
या अमेरिका से मुंसलिक मालियाती निज़ाम पर इन्हिसार बहुत कम होता है। यही वजह है कि ईरान पर आयद अमेरिकन सैंक्शंस के असरात किसी हद तक कम हो जाते हैं और अमेरिका के लिए इन माली लेन देन पर नज़र रखना या रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मकसद के लिए चीन ने गुज़िश्ता चंद बरसों में मुतबादिल मालियाती ढांचा भी तैयार किया है, जिसमें ऐसे बैनकारी और अदायगी के निज़ाम शामिल हैं जो रवायती मगरबी मालियाती नेटवर्क्स खुसूसन अमेरिकन निज़ाम पर इन्हिसार कम करने के लिए बनाए गए हैं। China has created its own form of digital currency. Known as the digital yuan, the currency will be owned by the central bank. This is the first major economy to create its own digital currency. The digital yuan isn't like Bitcoin, which is not backed by a government or central bank. युआन में तेल की तिजारत सिर्फ करेंसी तब्दील करने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुतबादिल मालियाती निज़ाम कायम करने की कोशिश है जो अमेरिका के असर और रसूख से निस्बतन आज़ाद हो। चाइना और ईरान का ताल्लुक सिर्फ तेल की खरीद और फरोख्त तक महदूद नहीं है। साल 2021 में ईरान और चाइना ने 25 साल ताउन के माहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें कई अहम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया है। इनमें शामिल है एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। इस मुआहदे ने दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत कर दिया। साथ ही ये भी वाजिया पैगाम दिया कि अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद चाइना और ईरान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखना चाहते हैं। इस मुआहदे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होता है। चाइना को ईरान से निस्बतन कम कीमत पर खाम तेल हासिल हो जाता है, जिससे इसकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ ईरान को एक ऐसा बड़ा और काबिल एतमाद खरीदार मिल जाता है जो अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद इससे तेल खरीदने के लिए तैयार है। इसी वजह से आज चाइना और ईरान के दरमियान ये ताल्लुक मिडिल ईस्ट की अहम तरीन माशी शराकत दारियों में से एक समझा जाता है, जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मैशियत और सियासत पर भी पड़ सकते हैं। अब वो सवाल जिस पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, अगर ईरान अपना तेल चाइनीज युआन में फरोख्त कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि पेट्रो डॉलर का निज़ाम ख़त्म होने वाला है? इसका मुख्तसर जवाब है अभी नहीं। अगरचा युआन में तेल की तिजारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन आज भी आलमी मालियाती निज़ाम पर अमेरिकी डॉलर की मजबूत गिरफ्त कायम है। इसकी कई अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से युआन अभी तक डॉलर की जगह नहीं ले सकता। डॉलर के बरक्स चाइनीज युआन को दुनिया भर में हर सूरत आज़ादाना तौर पर दूसरी करेंसी में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि चाइना अपनी करेंसी और मुल्क से बाहर जाने वाले सरमाए पर काफ़ी हद तक हुकूमती कंट्रोल रखता है। यही पाबंदियाँ युआन के आलमी इस्तेमाल को महदूद कर देती हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और दीगर मालियाती इदारे दुनिया के सबसे बड़े, मुस्तकीम और ज़्यादा फाल समझे जाते हैं। इसके मुकाबले में चाइना की मालियाती मंडियां अभी इतनी बड़ी या इतनी आज़ाद नहीं हैं, जिसकी वजह से आलमी सरमायाकार अब भी अमेरिकन मार्केट को ज़्यादा महफूज समझते हैं। आज भी दुनिया भर की हुकूमतें, मरकजी बैंक, सरमायाकार और बड़ी कंपनियां अमेरिकी डॉलर पर ज़्यादा एतमाद करती हैं। इसलिए आलमी तिजारत, सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉलर का किरदार अभी भी नुमाया है। इसी वजह से बेशतर माहिरीन का मानना है कि युआन में तेल की तिजारत एक अचानक आने वाला इनकलाब नहीं, बल्कि एक आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीली है। यानी अगर मुस्तकबिल में आलमी मालियाती निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली आती भी है तो वो एक दिन या एक साल में नहीं आएगी, बल्कि इसमें कई साल, शायद कई दहाइयाँ लग सकती हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में एक नई इस्लाह बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, पेट्रो युआन। पेट्रो युआन से मुराद वो निज़ाम है जिसमें तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर के बजाय
युआन में की जाए। इस मकसद के तहत चीन ने शंघाई में युआन पर मबनी ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मुतारिफ करवाए और मुख्तलिफ तेल बरामद करने वाले ममालिक को ये तरगीब दी कि वो अपनी अदायगियाँ युआन में कबूल करें। इसका बुनियादी मकसद एक ऐसा मुतबादिल आलमी तवानाई तजारती निज़ाम कायम करना है जो सिर्फ डॉलर पर मुनहसर ना हो। पेट्रो युआन के हामियों को कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक युआन में तेल की तिजारत शुरू कर दें तो मुस्तकबिल में दुनिया का इन्हिसार डॉलर पर कम हो सकता है। दूसरी जानिब नागदीन का मौक़िफ़ है कि चाइना अपनी करेंसी और मालियाती निज़ाम पर सख्त हुकूमती कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से युआन अभी अमेरिकी डॉलर का हकीकती मुतबादिल बनने की सलाहियत नहीं रखता। अगर हकीकत की बात की जाए तो शायद मामला इन दोनों आरा के दरमियान कहीं मौजूद है, यानी पेट्रो युआन आलमी मालियाती निज़ाम में एक अहम तब्दीली की इब्तिदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसे डॉलर की मुकम्मल जगह लेने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। अमेरिका, ख़ास तौर पर वाशिंगटन की नज़र में डॉलर की आलमी बरतरी सिर्फ एक माशी मसला नहीं बल्कि एक अहम स्ट्रेटजिक ताकत भी है। दुनिया भर में डॉलर का मजबूत किरदार अमेरिका को कई बड़े फ़वाइद फराहम करता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर सैंक्शंस लगाना, आलमी मंडी से निस्बतन कम लागत पर कर्ज हासिल करना, बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम पर असर बरकरार रखना और दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत के तौर पर अपनी क़यादत कायम रखना। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तेल और तवानाई की तिजारत डॉलर के बजाय दूसरी करेंसियों जैसे युआन में करना शुरू कर दें तो वक्त के साथ अमेरिका का ये मालियाती असर कम हो सकता है। इसी वजह से अमेरिकन हुकूमत ईरान, चीन, रूस और दीगर ऐसे ममालिक की सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं जो आलमी तिजारत में डॉलर के मुतबादिल निज़ाम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से माहिरीन का मानना है कि अमेरिकन सैंक्शंस ने ही इस तब्दीली के अमल को तेज कर दिया है। जब किसी मुल्क को डॉलर पर मबनी मालियाती निज़ाम से अलग कर दिया जाता है तो वो अपनी तिजारत जारी रखने के लिए कुदरती तौर पर मुतबादिल रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। ईरान इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। इस तरह रूस ने भी हालिया बरसों में अपनी बैनुल-अक़वामी तिजारत में डॉलर के बजाय दीगर करेंसियों के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा किया है। अगर मुस्तकबिल में मज़ीद ममालिक ऐसे मुतबादिल अदायगी के निज़ाम इस्तेमाल करने लगते हैं तो दुनिया का मालियाती निज़ाम पहले की निस्बत मल्टीपोलर हो सकता है, यानी ऐसा निज़ाम जहां सिर्फ एक करेंसी के बजाय कई बड़ी करेंसियां आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करेंगी। अलबत्ता इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि डॉलर अचानक ख़त्म हो जाएगा या अपनी अहमियत खो देगा, बल्कि ज़्यादा इम्कान यही है कि आने वाले बरसों में डॉलर को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जबकि युआन और दीगर करेंसियां भी आलमी तिजारत में अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करेंगी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की कई निजी रिफाइनरियां अब भी ईरान से खाम तेल खरीद रही हैं और इनमें से बहुत सी अदायगियां डॉलर के बजाय युआन में की जा रही हैं। इसके साथ साथ ईरान की तेल की बरामदात और मुतबादिल अदायगी के निज़ाम से मुतल्लिक आलमी सतह पर बहस भी मुसलसल जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि आबने हुर्मुज़ जैसे इंतहाई अहम बाहरी रास्ते से गुजरने वाली तेल की तिजारत में भी युआन के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर रही हैं। ताहम बहुत से माहिरीन का कहना है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ऐसे मंसूबे आलमी तौर पर कितने कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम बहसों और तजावीज़ से कतई नज़र एक बात वाज़ेह नज़र आती है। ईरान और चाइना आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के बगैर तवानाई की तिजारत को वसअत दे रहे हैं और दोनों ममालिक इसी सिमत में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। ईरान का युआन में तेल फरोख्त करना सिर्फ करेंसी तब्दील करने का मामला नहीं है। ये कहानी दरअसल अमेरिकन सैंक्शंस, आलमी ताकत के तवाज़ुन, माशी खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी तिजारत के मुस्तक़बिल से जुड़ी हुई है। ईरान के लिए युआन में अदायगियाँ
ایک ایسا راستہ فراہم کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ پابندیوں کے باوجود اپنی تیل کی برآمدات جاری رکھ سکتا ہے۔ چین کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ یوان کو عالمی سطح پر زیادہ مضبوط اور قابل قبول کرنسی کے طور پر پیش کرے، جبکہ امریکہ کے لیے یہ نظام ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو کیا پیٹرو ڈالر کل ختم ہو جائے گا؟ شاید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے اور عالمی مالیاتی نظام میں اس کا مرکزی کردار برقرار ہے۔ لیکن دوسری طرف یوان میں فروخت ہونے والا ہر تیل کا ٹینکر یہ اشارہ ضرور دیتا ہے کہ دنیا میں متبادل نظام آہستہ آہستہ جنم لے رہے ہیں۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ڈالر کب ختم ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ ایسے دور کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ کئی بڑی کرنسیاں عالمی تجارت اور معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ اور اگر موجودہ رجحانات یہی رہے تو ممکن ہے کہ اس نئی مالیاتی دنیا کی بنیادیں اسی وقت رکھی جا رہی ہوں جب ایک کے بعد ایک تیل سے بھرے بحری جہاز یوان میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔